बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अपनी बिज़नेस प्लान की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज एक और बिज़नेस प्लान है जिसका नाम है हमारा 12 बजे। तो 12 बजे थोड़ा सा टिपिकल नेम है, यानी कुछ मुख्तलिफ ख्याल आ जाते हैं कि 12 बजे पता नहीं क्या किस तरह का ये इवेंट होगा। मुझे भी कुछ नहीं पता कि ये क्या करने वाले हैं अपने इवेंट में। तो देखते आप देखें इनकी डेकोरेशन बहुत अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है और काफ़ी अच्छे से इस पर ये काम कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि 12 बजे क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या ये जो नई चीज़ लेके आ रहे हैं हमारे लिए। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं कॉल करूँगा ग्रुप लीडर महजेब कि वो आप स्टेज पे आ जाएं और अपने ग्रुप मेंबर्स और उसके साथ साथ फॉर्मली अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज़ कर दें। Assalamualaikum and good afternoon to ladies and gentlemen present here. I'm Asif from Institute of Business Administration, Shah Abdul Latif University, Khairpur. And as you know that we are here to present our business idea under the supervision of our great supervisor and professor, Dr. Rahim Baksh Sumro. So first of all, I would like to thank him for providing us such a great platform to brainstorm our creativity and present our ideas in front of all of you. Thank you so much, sir. Now I'm here along with my group members, so I would like to introduce them first. I'm working here as a journal manager, and along with me we are having 4 group members. So first of all, we are having Aisha Noor as marketing expert in our organization. Aisha Noor, come here on stage. And the second one group member is Suhaib Ali, working as an event manager. And we are having the operation manager Ramsha Kasmi. Please come on stage. Last but not the least, to retain our customers, Taskeen Fatma Rizvi as a customer service representative. Thank you. You can have your seats now. So I know you guys are very much excited to know that what actually our business is. So without wasting time, I'm going to let you know. एडवर्टाइजमेंट सर, एक सेकेंड, वीडियो रोकें तो मैं एडवर्टाइजमेंट चलाऊंगी। ओके, मैं जाऊँ कैसे सर? वो वीडियो अलग से चलेगी ना। Very excited to know that why we have done all this decoration, like we are celebrating somebody's birthday or is there any event. Our respected and honorable director for taking out his precious time to listen our presentation. Thank you so much, sir. So have you guys ever imagined a business that converts your dreams into reality and plans your events not only to perfection but adds a sprinkle of excitement at midnight? So just give yourself a minute and free your mind from every kind of thinking and imagine a world where your dream celebrations are not only flawlessly executed but ends on a perfect note. So I'm very excited to present our business idea that we have named as 12 Baje. So here you can see the advertisement first. A little bit confusing that why we have named our business as 12 Baje. So 12 Baje, sir, video repeat karwaiye. Anniversaries, engagements, proposals, bridal showers, and much more on your way. From concept to celebration, we make your vision come to life. To enlighten your event and customize your dreams, do visit our website. So we are presenting 12 Baje, the business. This is a unique business venture that not only plans but executes your dream celebrations and delivers surprise gifts to create unforgettable experiences of your occasions. We understand the importance of your celebrations. We understand how much your special occasions are important to you.
So we are providing the unforgettable experiences to create your celebrations unforgettable. So our business aims to bring these moments to life by providing outstanding top-notch event management and surprise gift delivery at 12 a.m. So our vision is to create unforgettable experiences and setting new standards of quality, excellence, innovation and creativity. And what our mission is? Our mission is to bring dreams to life by providing creative and innovative event experiences that exceeds the customer expectations. Not only exceeds the customer expectations but also retain them for the long-term future events. So in our initial phase, like we are starting in these months, like November, December, January, Feb, so we are focusing on these few events because this is the time period that mostly people are celebrating these events. So we are focusing on very few events like birthday celebrations, anniversaries, New Year celebration, engagement and proposal, baby shower and birthday shower. So what decorations and samples, I would like to show you the samples. First of all, here you can see the birthday decor. We are providing creative and innovative ideas. The second picture shows the unique celebration of anniversary decor. And here are the some samples of the New Year decoration that we are providing with different accessories. Here is a unique concept of destination events. Like nowadays people are mainly focusing on doing destination weddings or destination celebrations. So we are innovating, we are doing this idea. So this is here you can see the unique destination and engagement proposal ideas. These events we are gonna organize. These are some examples of bridal shower and baby shower ideas, and what accessories we are providing, what services we are providing for these kind of events are customized decorations like this picture you can see, and the lightning events, the unique lightning concept in the events like here you can see in this picture. And we are also providing the theme parties like here we have showed, and we are also providing the sweets and gifts, customized sweets and gifts for these events to make it more memorable and creative. And instead of this, the unique thing that we are also providing to cover all the event is photography and videography services. We are having 2 photographers and videographer to cover all your event. These are some flares and posters and different accessories that we are providing as well. Here you can see some examples like this is the example of a bridal shower accessories. We have created this to show you. Here are some examples of that. And instead of this, we are also providing the flares and thank you gifts that mostly people want in their ceremonies. And here are the games. We are also creating some innovative games in the events like this. Here you can see there is a basket and a creative art to write some wishes for the one who are celebrating their event. And these are some customized gifts. It was all about the events and the services that we are offering for that. Now the second service that we are providing is a surprise 12 a.m. surprise gift delivery that I would like to call our customer sales representative Taskeen Fatma Rizvi. She can tell you better what services we are providing, how can you approach us, where is our office, and how can you book your event. Thank you so much. Come here on stage. Assalamualaikum, I am Taskeen Rizvi. So I am the customer representative of our business plan. We are specialized in delivering the surprise gift deliveries which add an extra layer of joy and excitement in the events. So these are our surprise gift deliveries which include the same day gift delivery. It offered the
सेम डे गिफ्ट डिलीवरी में ये है कि मतलब जिस दिन आप ऑर्डर हमारा कस्टमर प्लेस करेगा उसी दिन हम क्या करेंगे, उसको वो जो गिफ्ट है या फिर जो भी उसका जो मतलब वो ऑफ़र कर रहा है वो हम उसको ऑर्डर उसी दिन प्रोवाइड करेंगे। अब इससे क्या होगा कि ये जो लास्ट मिनट ओकेजन्स होते हैं इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। सेकेंड है हमारा कस्टमाइज गिफ्ट पैकेजेस। कस्टमाइज गिफ्ट पैकेजेस में हमारे आ जाते हैं जिसमें जो कस्टमर होता है वो स्पेसिफिक आइटम्स अपने जो गिफ्ट देना चाह रहा है उसमें जो स्पेसिफिक आइटम्स हो सकते हैं, थीम्स हो सकते हैं या पर्सनलाइज कुछ टचेस हो सकते हैं जो वो दे सकते हैं जिसको वो गिफ्ट देना चाह रहे हैं। जैसे कि ये बकेट है, इसमें जो भी फिलिंग है वो हमारा कस्टमर अपनी मर्ज़ी से करवा सकता है। और उसके अलावा ये भी है बकेट सेकंड, इसमें ये डिफरेंट नेम्स लिखे हुए जिसको वो देना चाह रहा है तो उसका वो कस्टमाइज नेम करवा सकता है। और ये कार्ड्स वगैरह हैं, ये वॉचेज़ हैं, इन पे भी नाम वो लिखवा सकते हैं अपना जिसको वो देना चाह रहे हैं। और उसके अलावा ये कप्स हैं कस्टमाइज़, ये सारा हमारे कस्टमाइज़ ऑप्शंस में आ जाता है। इसमें वो पिक्स नेम्स वगैरह जो भी कस्टमर को देना चाह रहा है वो प्रोवाइड इसमें कर सकता है हमें, फिर हम उसको वैसा गिफ्ट प्रोवाइड करके दे सकते हैं। थर्ड है पर्सनलाइज गिफ्ट नोट्स। अब पर्सनलाइज गिफ्ट नोट जो होता है वो एक बहुत गिफ्ट को जो है ना बहुत यूनिक और थॉटफुल बना देता है, क्योंकि अब आपको अगर कोई ऐसा गिफ्ट दे रहा है उस पर एक अगर क्यूट सा कोई नोट लिखा हुआ होगा तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेशल फील होता है कि किसी ने हमें एक थोड़ा क्यूट सा नोट भी दिया है। उसके बाद आ जाता है एक्सक्लूसिव गिफ्ट कलेक्शन। Our business 12 Baje also provide exclusive collection of gifts that are not easily available to standard stores. These are the products that we deliver to our beloved customers, like cakes, customized gifts, flowers, customized buckets, as I show you, and creative wishes. These are the sample of products that we provide to our customers, like cake gifts, customized buckets, customized flower buckets, and customized gift buckets, जो मैंने सबको दिखाई हैं अभी यहाँ पे। उसके बाद एक चॉकलेट बकेट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। बकेट कस्टमाइज बकेट्स आ जा रही हैं, स्क्रैप बुक आ जा रही जैसे कि ये है, ये रहा। इसमें वो जो इसमें ऐड करवाना चाहें अपने कस्टमर के लिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं, हम वैसा बना के उनको दे देंगे। उसके बाद आ रहा है कस्टमाइज केक्स आ जा रहे हैं और कस्टमाइज बॉक्सेस आ जा रहे हैं और ये सब हैं। उसके बाद आ रहा है हाउ वी वर्क। There are basically two main elements of our business: event management and surprise gift delivery. In event management, firstly the client contact us about the event requirements, then we schedule the meeting about the mission preferences and budget of the meeting. Then our team design a detailed plan of the event and provide a note. After the plan has been approved, we execute the plan and manage all the event logistics. Now, our second event of our business plan is the surprise gift deliveries. Here, firstly, the client select a gift or a customized gift. Then we provide the recipient details and a delivery time. Then we prepare the gift and deliver it to the specific locations and create a memorable surprise moments for our customers. Booking office. 12 Baje also has a booking office which is strategically located at the Military Road, Sakhar. And the main purpose of our booking office is to processing the order deliveries, efficiently coordinate the service delivery, surprise gift deliveries and the event management services. And the key functions of our business offices are the event management, quality control, customer interactions, and more. Our next topic is business analysis, which will be present by Sohaib Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sohaib Ali, event manager of 12 Baje. Before we start any business, it means in every startup, it needs to be scanned, it needs to be analyzed through various aspects associated with that business. So we analyzed, we scanned, we determined, we studies various factors before we finalize the business 12 Baje. Business analysis जेका है उहा छो ज़रूरी आहे, छो जो असां सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेसिस ऐं असां पंहिंजे मार्केट में गैप ॾिसंदा आहियूं त असांजे मार्केट में गैप केतिरो आहे ऐं असांजो बिज़नेस उते एग्ज़िस्ट कंदो, सक्सेसफुल वेंदो न वेंदो, इन्हनि सभिनी शयुनि जे लाइ असांजी बिज़नेस एनालिसिस जेका आहे उहा ज़रूरी आहे।
उर्दू या इंग्लिश? ओके। हाँ, बिज़नेस एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम सबसे पहले तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हमारे बिज़नेस की मार्केट में अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, आइदर गैप है, कौन कौन सी जो है डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारा बिज़नेस जो है सक्सेसफुल हो सकता है, टारगेट ऑडियंस जो है कौन सी ऑडियंस होगी जिसको हम टारगेट करेंगे, वो हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। इन सब चीज़ों को मिला के हम जो है एक बिज़नेस एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम देखते हैं हमारे बिज़नेस का जो है वो स्कोप क्या है, हमारे बिज़नेस के स्कोप के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, क्या क्या करना पड़ेगा हमें आगे अपने बिज़नेस में। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस से। सबसे पहले तो हमारे लिए ये ज़रूरी था कि उन कॉम्पिटिटर्स को हम एनालाइज़ करें जो हम जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो 12 बजे के होने वाले जो भी इवेंट्स होते हैं वहाँ पे सरप्राइज़ गिफ्ट डिलीवरीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो हमने जो है उनकी रिसर्च करनी थी। उसके अलावा हमने वो सब जो है कंपनीज़, वो सब जो है बिज़नेसेस देखने थे जो इवेंट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो फोकस है वो इन 2 चीज़ों पर था। तो पीके गिफ्ट शॉप जो है हमारा कॉम्पिटिटर हो सकता है, क्योंकि ये सिमिलर टाइप ऑफ बिज़नेसेस प्रोवाइड करते हैं, पाकिस्तान गिफ्ट ऑनलाइन, द गिफ्टेस, giftinday.com एंड द एलिजेंस। इन सब को हमने स्कैन किया, इन सब कॉम्पिटिटर्स को हमने एनालाइज़ किया। तकरीबन सब की सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन थी। ज़्यादातर जो डिफरेंस था वो एक ही था कि हम इवेंट मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो 12 बजे सरप्राइज़ गिफ्ट डिलीवरी पे काम कर रहे हैं। तो हमने इनकी वेबसाइट्स देखी, इनकी प्रोडक्ट्स, प्राइसेस कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, रेस्पॉन्स रेट क्या है, डिलीवरी कैसे कर रहे हैं, और इनकी प्रोडक्ट्स जो है, इनकी सर्विसेज जो हैं, जो भी वेबसाइट पे इन लोगों ने लगाई हुई हैं वो कितनी अट्रैक्टिव हैं। ये सब चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि 12 बजे हमारा जो है उसका मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, ये सब चीज़ें क्या होगी। आगे चलते हैं SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस में सबसे पहले स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। स्ट्रेंथ हमारी क्या है? टॉप लेवल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन विच कैन सेट अप अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। सबसे पहले हमारी ये स्ट्रेंथ है कि क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा है इस बिज़नेस में। जितना चाहे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जितनी चाहे हम चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना के डिस्प्ले करवा सकते हैं। इनोवेशन ज़्यादा है, नई नई चीज़ें आपके सामने सब प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, इन सब में क्रिएटिविटी भी शामिल है, इन सब में इनोवेशन भी शामिल है। उसके बाद बात करते हैं इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट क्यों होगी? जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है जो भी दुनिया में बिज़नेसेस काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है उन सब का बैकग्राउंड BBA से हो, MBA से हो, लेकिन हम वो मैनेजमेंट हैं, 12 बजे की वो मैनेजमेंट हैं जो सब के सब कोई BBA HR से, कोई BBA मार्केटिंग से, मतलब हम बिज़नेस फील्ड के बंदे हैं। हम जानते हैं प्रोडक्ट्स, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, टारगेट मार्केट, टारगेटिंग, सेगमेंटेशन, ये सब चीज़ें कैसे करनी है। उसके बाद 3rd नंबर, अपडेट नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री, स्टेइंग अपडेट ऑन ट्रेंड्स एंड नोइंग द बेस्ट वेंडर्स कैन बी अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमारी नॉलेज अपडेटेड हो। फ्यूचर में क्या होगा, अपकमिंग इवेंट्स, अपकमिंग फ्यूचर को स्कैन कर रहे हैं हम कि फ्यूचर में हमारा बिज़नेस कितना सक्सेसफुल जाएगा, नहीं जाएगा, ये चीज़ देखना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। उसके बाद अगर वीकनेसेस की बात करें तो इट कैन बी अ सीजनल बिज़नेस विथ फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। ये एक सीजनल बिज़नेस हो सकता है, हमें नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी में 50 लोगों की बर्थडे, 50 लोग, हमें क्या पता कि 50 लोगों में से हमें कितने लोग ऑर्डर देंगे, कितने बंदे सेलिब्रेट करेंगे, कितने नहीं करेंगे। किसी मंथ में हमारी सेल ज़्यादा होगी, किसी मंथ में हमारी सेल कम होगी। तो ये एक और उस हिसाब से जो इवेंट्स हैं, जैसे शादियां वगैरह हैं, आजकल सीज़न चल रहा है, तो ये सीज़नल बिज़नेस हो सकता है। अगर ये सीज़न ख़त्म हो गई तो हमारी काफ़ी सारी जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, मल्टीपल वैरायटीज़ ऑफ बिज़नेस हैं, उनमें हमें लॉस हो सकता है। उसके बाद हाई कंपटीशन। हाई कंपटीशन इस बेसिस पे, जैसे पीछे मैंने आपको कॉम्पिटिटर्स दिखाए वो तो कम है, लेकिन इनडायरेक्ट कंपटीशन इस इंडस्ट्री में ज़्यादा है, क्योंकि आजकल लोग जो है बर्थडेज़, एनिवर्सरीज़, ब्राइडल शावर्स, बेबी शावर्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके पास अवेलेबिलिटी है, वो फ़िज़िकली जाके कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। हमसे ऑनलाइन क्यों परचेज़ करेंगे?
क्योंकि ऑनलाइन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि जो है लोग अगर हमसे परचेज़ करेंगे तो इधर हम क्वालिटी, क्योंकि फ़र्स्ट कस्टमर जो होगा वो कंफ्यूज होगा कि ये क्वालिटी दे रहे हैं नहीं दे रहे, इनके केक्स कैसे होंगे, इनके गिफ्ट्स कैसे होंगे, उनमें वैरायटीज़, उनमें जो हम परफ्यूम्स डिफरेंट चीज़ें डालेंगे तो वो कौन कौन सी जो है कंपनीज़ की कौन कौन से ब्रांड्स की होंगी, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा होगा। उसके बाद है क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस। क्लाइंट्स हमसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइदर वो हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट क्लाइंट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चॉइस के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, हर किसी की अपनी चॉइस होगी है। तो आइदर हम जो हैं उनकी क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये स्टिल हमारे लिए एक कन्फ्यूजन है। अगर बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की तो मार्केट ग्रोथ सबसे ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी ये है कि इस मार्केट में ग्रोथ है। आजकल गिफ्ट्स का, बर्थडेज़ का, या जैसे बेबी शावर्स हैं, ब्राइडल शावर्स हैं, इंगेजमेंट्स का, इन सब का ट्रेंड बढ़ गया है। पहले ऐसे नहीं होता था, एक ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करता था, लेकिन आजकल हर चीज़ अलग अलग रस्म, अलग अलग जो है वो अच्छे तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमें फ्यूचर में मतलब हमारा इस चीज़ का मार्केट जो है वो ग्रो करेगा। निच स्पेशलाइजेशन दूसरी हमारी अपॉर्चुनिटी है। निच स्पेशलाइजेशन में क्या है कि हमें स्पेशलाइजेशन इसलिए है कि हमने 4-5 जो है स्पेसिफ़िक इवेंट्स को, स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को सिलेक्ट किया हुआ है। हम इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। ये चीज़ें अगर देखा जाए, ब्राइडल शावर, बेबी शावर, एनिवर्सरीज़, बर्थडेज़ के अलावा भी इवेंट्स हैं, मैरिजेज़ हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं अगर उनकी बात करें, लेकिन हमने स्पेसिफ़िक किया हुआ है चीज़ों को। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। थर्ड वन इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आजकल सब कुछ जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है। जो भी मतलब बिज़नेसेस आजकल ट्रेंडिंग में, सबसे ज़्यादा उनका फोकस जो है वो डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। तो हमारा काम, एक तो हमारी बुकिंग ऑफिस ऑलरेडी है, वहाँ पे सिर्फ इवेंट्स की बुकिंग होगी। आइदर हम वहाँ पे ये भी कर दें कि जो है गिफ्ट डिलीवरी की बुकिंग भी हम सर्विसेज रख दें, लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस हमारी ज़रूरी होगी। तो उसके लिए डिजिटल मीडिया पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और आजकल दौर ही डिजिटल मीडिया का है, डिजिटल मार्केटिंग का है, तो ये हमें सबसे ज़्यादा जो है काम आने वाली चीज़ होगी। उसके बाद थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स क्या हैं? सबसे पहला थ्रेट है इकोनॉमिक डाउन टर्न। जैसे अभी कुछ वक्त पहले अभी से ज़्यादा महंगाई थी, तो उसमें लोग स्पेंडिंग कम करेंगे चीज़ों पे, ऑनलाइन सर्विसेज लेंगे नहीं लेंगे, ये हमारे लिए एक थ्रेट हो सकता है कि जब भी इकानमी डाउन जाएगी तो लोग स्पेंडिंग कम करना शुरू करेंगे और हमारी सर्विसेज जो हैं, हमारे बिज़नेस को जो है वो लॉस हो सकता है। उसके बाद एक कंप्लायंस विथ लीगल रेगुलेशंस कैन बी कॉम्प्लेक्स। अब ये एक थ्रेट है कि जैसे 12 बजे थोड़ा सा लेट नाइट है, तो 12 बजे में क्या होगा, अगर हमारे जो हैं बंदे जैसे डिलीवरी बॉयज़ वगैरह होंगे वो 12 बजे लेट जाएंगे, कभी नेबर्स को इशू हो सकता है, कभी घर वालों को अगर सरप्राइज़ कोई गिफ्ट देना है तो घर वालों को इशू हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। उस हिसाब से एक ये गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ से रिलेटेड फील्ड है, क्योंकि बिजनेसेस का एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है जिसमें सुबह से लेकर शाम तक ओपन करने होते हैं, बंद करने होते हैं, तो उसके लिए हमारा ये इशू हो सकता है। उसके बाद एक और थ्रेट है वेदर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मौसम के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से किसी ने भी हमें ऑर्डर दिया और अचानक से मौसम ख़राब हो गया, जैसे हमारे पास केक होगा, डिफरेंट गिफ्ट्स होंगे आपके लिए, तो डिलीवरी बॉय जो है वो लेके आ रहा है, तो मौसम जो है अगर बारिश हो रही है अचानक से, ज़्यादा ठंड है, कोई और जो है मौसमी इशू है, तो उस हिसाब से हमारे डिलीवरी बॉयज़ को थोड़ा बहुत इशू होगा, तो ये हमारे लिए एक थ्रेट बन सकता है। और उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कोरोना वायरस आ गया तो वायरस में निकलना जो है, घरों से निकलना, उस पर पाबंदी थी, इस हिसाब से ये भी एक थ्रेट हमारे लिए बन सकता है। तो ये सारी ओवरऑल जो है वो शॉर्ट एनालिसिस थी, जिसमें हमने देखा अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, थ्रेट्स कौन से हैं, वीकनेसेस कौन सी हैं और स्ट्रेंथ्स हमारी कौन सी हैं, कैसे हम अपने बिज़नेस को फर्दर जो है वो प्रमोट करेंगे। यहाँ तक मेरी प्रेजेंटेशन थी। फर्दर आई विल कॉल मिस आयशा फॉर मार्केटिंग पोर्शन। Good afternoon to all of you.
is today we are presenting our business plan in front of you. Is my all group members have already told you about our business, the services we offer, the events we are going to manage, our business overview, our mission, vision and all. Now it's time to talk about the marketing plan. But before moving toward the topic, I have a question that why a company need to include marketing plan in their business plan? We have a business, we have business idea, we have products, we have team. Why we include marketing? Why a company need to market their products and services? So basically marketing plan is very necessary to include, because marketing plan is a document that contain that outlining the platforms and methods that company use to reach their target audience. The marketing plan contain the strategies that a company use to promote their products and services. So this is very important part of the business plan that is necessary to include. So keeping in view the nature of our businesses, our marketing plan contain 4 major pillars. First one is market research. So हमने अपने बिजनेस के लिए क्या किया? सबसे पहले मार्केट रिसर्च की. मार्केटिंग रिसर्च के लिए वी हैव कंडक्ट अ पायलट स्टडी in order to identify or understand the customers' preferences, market trends, their needs, demands and about competitors, their product, their pricing strategies and all. So पायलट स्टडी के लिए हमने क्या किया? हम 5 टीम मेंबर्स थे. हर किसी ने अपने अपने फ्रेंड सर्कल में ये बात की, अपने टीचर्स से शेयर किया, अपना आइडिया हमने शेयर किया, अपने घर में ये शेयर किया, अपने नेबर्स से शेयर किया. हमने बहुत लोगों से पूछा कि ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया है, ये नाम है हमारा, हम इस तरह के प्रोडक्ट्स इवेंट जो है वो मैनेज करेंगे, आगे लोगों को देंगे, प्रोवाइड करेंगे. तो हमने जो मतलब आइडियाज़ उन लोगों ने दिए, बताए, तो उन लोगों ने कहा आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें उन लोगों ने जो है कबूल की. अब रिजल्ट से हमें क्या पता चला कि मार्केट इज़ वेरी ओपन फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस, बट देयर इज़ नीड ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स. क्योंकि कस्टमाइजेशन का सोशल मीडिया का दौर आजकल बहुत ज़्यादा है. कस्टमाइजेशन पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि चीज़ें जो है वो हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग हो. तो इससे हमें ये पता चला कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी इस टाइप की बहुत ज़्यादा है, और हमें जो हमारे जिस टाइप का बिज़नेस है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मार्केट ओपन है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम ये बिज़नेस कर सकते हैं. उसके बाद हमारी टारगेट ऑडियंस. सो बेसिकली द सर्विसेज वी ऑफर, वी आर टारगेटिंग द फैमिलीज, individuals, families, couples and also businesses who need a professional management. अब टारगेट ऑडियंस में देखा जाए तो हमने फैमिलीज़ को भी कवर किया हुआ है, इंडिविजुअल्स को भी किया हुआ है, कपल्स को भी किया हुआ है, फ्रेंड्स को भी किया हुआ है. अब इनको क्यों देखें? कपल्स जो हैं ज़्यादातर अब जैसे एनिवर्सरीज वो करते हैं, ठीक है, एनिवर्सरी के लिए उन्हें एक चाहिए मैनेजमेंट, एक उनको इवेंट चाहिए, सेटअप चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, गिफ्ट चाहिए जो कि हम अवेलेबल करेंगे. तो हमारा टारगेट है कपल्स पे. उसके बाद फैमिलीज़. अब फैमिलीज़ पे क्यों? क्योंकि कुछ हमारे पास अभी भी बहुत अच्छी फैमिलीज़ होती हैं जिनका बॉन्ड आपस में बहुत ज़्यादा होता है, अपने वो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते हैं और हर इवेंट को वो एक अलग ही तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. तो उनके लिए भी उनको एक मैनेजमेंट चाहिए, उनको डेकोरेशन चाहिए. तो उसके लिए हम उनको आइडियाज़ देंगे, डेकोर करके देंगे, सारी चीज़ें उनको अवेलेबल करेंगे. तो हमारा फोकस होगा फैमिलीज़ पे भी. अब इंडिविजुअल्स में जो है फ्रेंड्स आ सकती हैं. जैसे कि 2 फ्रेंड्स हैं, आपस में किसी की बर्थडे है तो वो उसको इस टाइप के जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे सकती है, उसकी डिफरेंट गिफ्ट्स दे सकती है, उसको चॉकलेट बॉक्स दे सकती है उसको. ये अगर किसी फ्रेंड की शादी है तो उसके लिए उसकी मायों में, मेहंदी में इस टाइप का वो जो है बकेट उसको बना के दे सकती है. ये एक बहुत यूनिक चीज़ें हैं, इसलिए हमारा फोकस जो है उन इंडिविजुअल्स पर भी है. दूसरा बिजनेसेस पे हमने भी किया है, क्योंकि बिजनेसेस जो इवेंट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनको भी एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमारा फोकस जो है वो बिजनेसेस पे भी है. सो इन शॉर्ट वी आर प्रैक्टिकली फोकसिंग ऑन द कस्टमर्स हु वैल्यू मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस एंड आर विलिंग टू क्रिएट अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस फॉर देयर लव्ड वंस. आफ्टर दैट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़. अब क्या होता है कि बहुत सी कंपनीज जो होती हैं स्ट्रेटजीज़ यूज़ करती है. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि मार्केटिंग प्लान कंटेन स्ट्रेटजीज दैट कंपनी यूज टू प्रमोट आर टू रीच देयर टारगेट ऑडियंस. सो बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन दीज 4 marketing strategies. The first one is SEO and social media.
SEO एंड सोशल मीडिया पे जैसे आजकल दौर बहुत ज़्यादा है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आजकल व्हाट्सअप पे भी बिजनेस शुरू हो गए, बिजनेस व्हाट्सअप आ गए, आप अपना कैटलॉग बना के वहाँ पे चीज़ें उनको शोकेस कर सकते हैं। तो हमारी जो प्रेजेंस होगी वो ज़्यादातर रादर देन फिजिकल लोकेशन हम ज़्यादातर ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अपने इंस्टाग्राम पे पेजेस हमने बनाए हुए हैं, उसके अलावा फेसबुक है, फेसबुक पे हमारा पेज है, हमारी वेबसाइट बनी हुई है, हमारे ग्रुप बिजनेस व्हाट्सएप है हमारा। तो सोशल मीडिया पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है। तो इस स्ट्रेटजी के थ्रू, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर जो है वो बहुत ज़्यादा है और जो लोग हैं वो एक दूसरे से बात करने से ज़्यादा मतलब मोबाइल पे वो जो है कनेक्ट होते हैं। अब कौन क्या खा रहा है, किस वक्त कहाँ पे, ये हमें स्नैपचैट की स्ट्रिक से पता चल रहा होता है कि ये बंदा इस वक्त ये कर रहा है। तो इसीलिए सोशल मीडिया का दौर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने ये स्ट्रेटजी पे ज़्यादा फोकस किया। दूसरी है ये SEO। अब SEO क्या होती है? ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे गूगल है या याहू है, ये दोनों सर्च इंजन है, ठीक है। हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, सर्च करते हैं कोई भी चीज़, जैसे कस्टमाइज गिफ्ट हो गया, तो सिर्फ हम कस्टमाइज़ की पहले के 3 वर्ड्स ही लिखते हैं तो वो नीचे खुद ही आ जाता है कस्टमाइज गिफ्ट्स, ठीक है। ये होती है SEO की टेक्निक। अब ये कंपनीज यूज़ करती है, गूगल को पे करती है या फेसबुक को हम पे करेंगे या इंस्टाग्राम को पे करेंगे, या फिर टैग्स यूज़ होते हैं। इसमें टैग्स वो होते हैं कि जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं ना, हमने अपने पेज पे अपलोड कर दिया, हमने इसके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में 15 से 20 टैग्स लगा दिए कि जैसे बर्थडे हो गया टैग, 12 बजे टैग हो गया, ये टैग हो गया, ये हमने इनके साथ लगा दिए, ठीक है। अब जब भी कोई सर्च करेगा ना इंस्टाग्राम पे कि 12 बजे सरप्राइज गिफ्ट डिलीवरी या फिर कस्टमाइज गिफ्ट, तो हमारी जो वेबसाइट है या हमारा पेज है वो फर्स्ट पे उनको करेगा, या फिर उनकी जो सर्च पे लिस्ट पूरी आती है वेबसाइट्स की, तो उनमें हमारी लिस्ट भी ऐड हो जाएगी। अब ये होती है SEO की टेक्निक। उसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? कंटेंट बेसिकली मटेरियल इन कंपनी यूज्ड इसमें क्या करती है कंपनी कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या अपनी बिजनेस से रिलेवेंट मटेरियल अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करती है, ताकि वो अपने कस्टमर्स को इंगेज रख सके अपने साथ उनको कनेक्ट रख सके। अब इसमें हम क्या क्या उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि जैसे कि हमारी ये गिफ्ट है, हमने बनाया, ठीक है। अब इसकी पूरी वीडियो बनाएंगे, छोटी सी क्लिप बनाएंगे, वो अपने पेजेस पे हम अपलोड करेंगे। अब जब ये कस्टमर्स देखेंगे तो वो एक तो उनके अंदर एक्साइटमेंट पैदा होगी, उनके अंदर ये नीड पैदा होगी कि अगर मेरी दोस्त की बर्थडे आई, मेरी दोस्त की ये हो गई, या हमारे यहाँ ये इवेंट हुआ, तो हम इस टाइप के जो है गिफ्ट्स इनसे बनवा सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, जैसे मैंने बताया, तो लोग इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा है आजकल। टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एक PR पैकेज दिया जाता है जिसमें आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स, उसके साथ एक कार्ड और उनको कुछ पेमेंट कर दें कि ये आप जो है अपने पेज पे हमारा वीडियो, हमारी बिज़नेस की प्रमोशन का वीडियो बना के अपने पेज पे अपलोड करें, ताकि जो आपके फॉलोवर्स हैं वो हमारी बिज़नेस को देखें और हमसे परचेज़ करें। ये होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो और हम इस पर भी ज़्यादा जो है फोकस करेंगे। दूसरी आती है हमारे पास कन्वेंशनल मार्केटिंग। अब कन्वेंशनल जो होती है ना, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग को कहा जाता है, जिसमें आप ऑफलाइन मीडिया को यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, जैसे कि बिलबोर्ड्स हो गए, पम्फलेट्स हो गए। हम इस पर भी फोकस करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन जो हमारी 3 स्ट्रेटजीज है ऊपर वाली, उन पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा। अब इस पे इतना ज़्यादा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी जो है ऑनलाइन प्रेजेंस फिजिकल से ज़्यादा है, तो हमारा फोकस उन 3 स्ट्रेटजीज पे ज़्यादा होगा। आफ्टर दैट प्राइजिंग स्ट्रेटजीज। अब जैसे कि हमारे थ्रेड में भी हमने बताया कि आजकल इकोनॉमिक डाउनटर्न बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग जो है वो परचेज़ कम कर रहे हैं, मतलब कि इतनी महंगाई हो गई है कि लोग जो है उनको चीज़ों को प्राइस देख के परचेज़ करते हैं कि इतनी प्राइस है, नहीं ये तो मैं परचेज़ नहीं करूँगा, हाँ इस प्राइस पे तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ पे हमने 2 चीज़ों पे फोकस किया। एक है हमारी प्रीमियम और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अब प्रीमियम और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है? वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग ये होती है कि जितना कस्टमर पे कर रहा है उसको उतनी वैल्यू प्रोवाइड की जाए। वो फिर इसमें भी ये भी हो सकता है कि आप जिस टाइप के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब जैसे कि ये चीज़ें अब हमने बनाई है, ये एक गिफ्ट हैम्पर है जी, ठीक है। इसमें हमने रिंग ऐड की है, एक टेडी बियर ऐड किया है, एक की चेन है और कुछ गर्ल्स की एक्सेसरीज़ है। अब ये क्या है? ये प्रोडक्ट है, इनकी क्वालिटी होगी, इनकी जो हम परचेज़ करेंगे तो इनकी कॉस्ट लगेगी। अब एक हैम्पर बनाने में हमें जितनी कॉस्ट लग रही है, हम अपना प्रॉफिट भी ऐड करेंगे, तो वो जो प्राइस कस्टमर पे करेगा तो वो ये ना सोचे कि मैंने ज़्यादा पे कर दिया और मुझे कम मिला, तो वो वैल्यू उसको प्रोवाइड करेंगे। ये वाली चीज़ में हम ज़्यादा करेंगे फोकस प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ में। उसके बाद हमारी आती है कॉम्पिटेटिव प्राइसेस।
कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में ये होता है कि जैसे हमने अपने बताया कि हमारे ये कॉम्पिटिटर्स हैं, तो जाहिर सी बात है उनके भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके भी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उनकी भी प्राइसिंग है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे कॉम्पिटिटर की एक प्रोडक्ट की प्राइस 3000 है, तो हम जो है वो ना ज़्यादा लो जाएंगे ना ज़्यादा हाई जाएंगे, हम मीडियम प्राइस पे चलेंगे। जैसे कि कस्टमर हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज़ करें और उनको हम सर्विसेज के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, उनको हम जो है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हमसे परचेज़ करें। तो ये कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में हम ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। So this is all about my presentation. Now next part is financial plan, which we will cover by Ms. Ramsha Kasmi. Assalamualaikum everyone, I'm Ramsha Kasmi. Now I'm going to tell you about our business financial plan and what are the human resources that we have. So the startup cost that we have is 5 lakh, and how we are spending it is for the office space we are spending 1 lakh, for the event planning software, which is a basic management software in which we are managing our customers database, and for the marketing and branding we are spending 1 lakh. Office equipment and supplies is we are spending 50,000. License and permits we are spending 20,000. For the working capital for initial expenses we are spending 25,000, which is for the day-to-day activities. Contingencies fund we are spending 80,000. Contingency fund is basically the backup saving for the business for the unexpected expenses or for the emergencies. Miscellaneous expenses, which is 75,000, which is also called other expenses, in which it could be for the repairing or for the maintenance or for the shipping cost. Now we have estimation for yearly projected revenue, which is 6 lakh. For the first 3 months of our business, we are focusing on building our client base by doing marketing, and the monthly revenue could be 20,000, which is just an estimation. Actual figures may vary. For the next 4 to 6 months, we have expanded our clients' reach, and then we are start optimizing our service offering, and the monthly revenue could be 40,000. And for the next 7 to 9 months, we are leveraging positive client feedback for future growth, and the monthly revenue could be 60,000. And last, for the 10 to 12 months, we are capitalizing on our peak season events and optimizing operations, and monthly revenue could be 80,000. Which now all the amount now the all amount addition of the all amount is 6 lakh. HR plan. Now further I'm going to tell you about the HR plan. HR is basically selecting right people for the right job. For the event planning, we have also, and for the event planning, HR work is to creating a smooth and coordination between the team members, and we are hiring the staff. And beyond that, we have breakdown of our HR staff. In top management, we have 5 persons, which is me, Mazeb, Taskeen, Aisha, and Sohaib. We have 3 delivery boys, which will deliver our products, which will give delivery services, and 2 photographers, which is also a freelancer photographer that we are in contacted with. And for the lower staff, we have 3 persons, which will help us on our on-site events. So now for the conclusion of our presentation, I will call Mazeb. We are having another amazing personality of the Institute of Business Administration, Shah Abdul Latif University. I would like to thank Sir Amir Shah, the Dean of our department, for taking out his precious time to listen our ideas. Thank you so much, sir. So the overall conclusion of our business is that we are mainly focusing on transforming the dreams into reality. And we at 12 Baje specializes in crafting the innovative and creative experiences of your special occasions. And our mission is to bring your unique visions to life and turning your ideas to unforgettable experiences. So let us paint your dreams with vibrant colors, and do contact
us on our website for booking of your event and your celebration. You can do visit our office, which is located at Military Road, Sakhar. And you can also visit our website thebarabudget.com and visit our Instagram page for further details. Now I would like to call all my team members to conclude the presentation, and if you have any questions you can ask. मेरा बेसिकली ये क्वेश्चन है कि आपने बताया हुआ है कि आपकी जो सप्लाईज़ हैं एक्चुअल जो आपने फिर जाके उसमें से प्रोडक्शन करके आपने सेल करनी है, सही है, वो आपने जस्ट रखा हुआ है अमाउंट 50,000 का, सही है। उसके बाद आपने बताया कि आपका ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो होगा 6 लाख का, सही है। और फिर आपने HR प्लान में बताया हुआ है कि आपके मोर देन 10 बंदे काम कर रहे हैं, 5 टॉप मैनेजमेंट में हैं और उसके अलावा 5-6 आपने अलग बताए दूसरे बंदे जो डिलीवरी बॉयज़ हैं या जो कैमरामैन वगैरह हैं। हाँ, तो आपका 6 लाख का रेवेन्यू है और आप 12 बंदे काम कर रहे हैं सारे साल के लिए, सही है। तो ये आप अपने एक्सपेंसेस कैसे मीट करेंगे और 50,000 से 6 लाख कैसे बनेंगे, वो थोड़ा बताइएगा। सबसे ज़्यादा पहले तो ये जो 5 लाख और 6 लाख का डिफरेंस है ना, ये हमने जो है प्रोजेक्ट किया हुआ है हमारे स्टार्टअप कॉस्ट के बेसिस पे ओनली। जैसे हमारा ओवरऑल एनुअल रेवेन्यू होता है, ओवरऑल एनुअल बजट होती है, वो तो ज़्यादा होगी एक्सपेक्टेड, क्योंकि देखें अगर कुल मिला के हम हर मंथ हमारी सेल जो है, अगर सेल की बात करें 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, कभी कभी 2-2, 3-3 इवेंट्स भी कवर होंगे। तो उसमें हमने सबसे पहले ये ऑप्शन रखा कि जैसे कॉन्टीजेंसी बजट है वो आगे पीछे होती है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो आगे पीछे होंगे। तो एक क्लियर प्रोजेक्शन हम कैसे बनाएं इसकी। फिर हमने फाइनली ये किया कि हम ज़्यादातर डिटेल में नहीं जा रहा, इनकम स्टेटमेंट या जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी हैं ओवरऑल 4-5 लगती हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सेल जो है वो एक्सपेक्टेड, मतलब एक फ़िक्स सेल नहीं है, एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है कि हमारी कितनी सेल होगी, एक सीजनल बिजनेस है। उस बेसिस पे एक फ़ाइनल हमने कंक्लूड किया कि हम कितने टाइम के अंदर जो है हम अपना स्टार्टअप कास्ट जो है अपनी वो रिकवर कर लेंगे। तो वो हमने मंथली एस्टिमेट अपने हिसाब से लगाया हुआ है। सही है। एनी अदर क्वेश्चन? Another thing is that कि जो हमारे पास राइडर्स हैं और जो फोटोग्राफर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। सखर में एक सर्विस है, सवारी सर्विस, जो कि राइडर्स प्रोवाइड करते हैं बहुत ही मिनिमम बजट में। उनकी डिलीवरी चार्जेस जो होती हैं ऑल अराउंड द सखर, रोडी एंड जो भी सिटीज़ उनके लोकेटेड एरियाज़ में हैं, जस्ट 80 रुपीज़ वो चार्ज कर रहे हैं पर पर्सन, ठीक है। तो वो जो है हमारा उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और वो हमें राइडर्स प्रोवाइड करते हैं बहुत ही मिनिमम बजट में। तो इसलिए हमारे इसमें इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है वो राइडर्स एंड फोटोग्राफर्स की नहीं लगती, बिल्कुल कंपनी उनको पे करती है। जी, लेकिन आपके अपनी टॉप मैनेजमेंट तो है ना, उनके तो एक्सपेंसेस होंगे, उनकी सैलरीज वगैरह होंगी, तो मतलब 6 लाख हमने जो है ना, क्योंकि ये अगर ये डबल भी हो जाए, 6 में से 12 भी हो जाए, फिर भी आप पूरे नहीं कर सकते। हाँ, ट्रिपल भी हो जाए तो भी 18 लाख जो है ना, ये बिज़नेस बहुत अभी से अनक्लियर है कि आगे चल के हमारा ये बिज़नेस फुल टाइम बनेगा, पार्ट टाइम बनेगा, किस हिसाब से हम सैलरीज फिक्स करें आपस में, इसलिए हमने ज़्यादा एस्टिमेशन में हम गए ही नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था कि यार आप लोगों का एग्जीक्यूशन प्लान क्या है? कई बार क्या होता है कि हमारे साथ कई बार ऐसे कस्टमर लग जाते हैं जो लास्ट मोमेंट चेंज करने चाहते हैं, कुछ चेंजिंग करनी होती है उन्हें, या फिर जो आपने एक सेटिंग वगैरह करी हुई है, उनका जो इवेंट है अपने मैनेज कर दिया, ठीक है, लास्ट मोमेंट उन्हें कुछ चेंजेस वगैरह चाहिए, तो आपका उस वक्त एग्जीक्यूशन प्लान क्या होगा? हाँ, तो पहले तो हमने ये सोचा था कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होंगी ना, हम एक उनका बुकलेट बनाते हैं, बुकलेट बना के जैसे छोटे मैगजीन्स होते हैं वो प्रिंट करवाएं, उस पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग होगी, कैसे हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ हमने स्लाइड्स में भी दिखा दिए, लेकिन फिर भी हमने जो है ये डिसाइड किया फाइनली कि जैसे कस्टमर चाहेगा, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया, 3-4 डिज़ाइंस दिखाएं, 5 डिज़ाइंस हम दिखाएंगे उनको कलर्स के हिसाब से, डेकोरेशन के हिसाब से, जितनी भी डेकोरेशन कस्टमर करवाना चाहे पहले ये प्री डिसाइडेड होगा, प्री डिसाइड करके फिर हम जो है उसको एग्जीक्यूट। अच्छा, अगर कोई बंदा लास्ट मोमेंट में चेंजिंग करना चाहे या लास्ट मोमेंट पे आपका प्रोग्राम कैंसिल करना चाहे, तो आपका मतलब रिटर्न ऑफ पेमेंट हम एडवांस में लेंगे, ठीक है। फिर कुछ ड्यूरेशन हमने रखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 वीक बिफोर आप हमें बता देंगे कि हम इवेंट नहीं करना चाहे, कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, फिर भी हम 25% पेमेंट हम लेंगे और 75% आपको रिटर्न कर देंगे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तव्हां पंहिंजे बिज़नेस जो थोड़ा ओवरव्यू ॾींदो? सर, हमारे बिज़नेस में 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमने जो नाम रखा है बिज़नेस का वो है 12 बजे। जो भी इवेंट्स हैं
12 बजे होते हैं, जैसे बर्थडेज़ हैं, एनिवर्सरीज़ हैं और उसके अलावा डिफरेंट जो है इवेंट्स जो 12 बजे सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनमें हम स्पेशलाइज उनमें हम डील करते हैं। अब हमने 2 चीज़ें रखी हुई हैं, एक है इवेंट मैनेजमेंट। हम ओवरऑल किसी की भी बर्थडे उसने हमें ऑर्डर दिया, हम उनके इवेंट को मैनेज करके ओवरऑल सब कुछ डेकोरेट करके, जैसे हमने पीछे ये दिखाया हुआ है, ये करेंगे। दूसरा हमारा है सरप्राइज़ गिफ्ट डिलीवरी। जैसे मेरे किसी दोस्त की बर्थडे मैंने ऑर्डर दे दिया और 12 बजे वालों ने जाके सरप्राइज़ उसको ठीक 12 बजे वो गिफ्ट जो है प्रोवाइड की। उस हिसाब से डिफरेंट हमने सैम्पल्स रखे हुए हैं। ये डिफरेंट गिफ्ट्स हैं, इनमें सिर्फ बर्थडेज़ नहीं है, सब एनिवर्सरीज़ हैं, ब्राइडल शावर, बेबी शावर वगैरह, जो भी बिजनेसेस हमने स्पेसिफिक 4-5 कैटेगरी के सिलेक्ट किए हुए हैं। व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स, कोई दिखाएंगे? आपकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? These are the types of events that we are mainly focusing on, like birthday celebrations and anniversaries, New Year celebration, engagement and proposal. And here are the some examples. Here are the example of the birthday decor and anniversary decor. And here you can see the New Year celebration decor. And here are the destination engagement and proposal ideas. Like nowadays people are mainly focusing on destination events. Or here are the examples of bridal shower and baby shower. And the services that we are providing for these kind of events are these: customized decoration and lightning themes. Like in this picture you can see these are the customized decoration, theme parties, and the sweets and gifts, customized gifts and videography and photography services. Instead of this, we are also providing these kind of accessories, that we are also having samples of those accessories here available here. And instead of this, the 12 AM surprise gift delivery includes these products like customized gift cakes and flowers, customized baskets and creative wishes. Like here you can see the first one is the customized cake gift and the customized basket, flower bucket. From where you took these pictures? Yes sir, these pictures are few are real and few are just took from Pinterest. Like Okay. here, this is the example of the invitation box. Here Okay. you can see there is a customized everything, customized jewelry, chocolate box and invitation card. And this picture I will show you this picture as well. This Okay. is the basket which include all the things. And here is the chocolate box, customized chocolate box. And this is for the engagement purpose. Like it includes a teddy bear, customized ring. Okay, very and, good, very good. So key- means you are in full preparations. Yes, sir. That's very good. Okay, thank you very much. I am very glad and very happy to see you here, and whatever the plan you have prepared, the business plan you have created, this is highly appreciable, and I congratulate Thank you so much. and hope that inshallah practically it will be materialized Inshallah. and will be very functional and fruitful for your group as well and for the institution at large. Thank you, sir. But one thing I'm just mentioning, and what I have just noticed here in SWOT analysis, kindly may you open the SWOT analysis. This is just a slight advice to you that it doesn't have any practical impact on your business plan, but for me, as I just noticed, that there is some part of the errors, you may say, in weaknesses. Weaknesses you are going to mention over here, these are not actually the weaknesses, these seems to be the threats, because weaknesses always are related with your personal capability, not outside capability. Outside, whatever just take an example, the number one weakness, it can be seasonal business with fluctuations in demand. This is not in your control. This is external environment. That's not your problem. That can be a problem in case of the threat. Weakness is related with your personal weakness. Yes.
internally. Say for example, financial problem, unavailability of the funds may be your weakness. This may be your weakness. Market expertise that you don't have, that may be your weakness. The overall, second, say for example, high competition. Competition is again external factor. This is not internal. But you can say that dealing with the competition, while dealing with the competition, we don't have such kind of the resources available with us in terms of the skill, in terms of the market know-how, in terms of the market base, in terms of the familiarity with the customers. These may be your weaknesses. These may be your weaknesses in terms of the how to handle with the competitors. Number third, that is the client expectations. Expectations may be high. And naturally, customers are actually again the external factor. You have to deal, you have to meet the expectations, but you can say that it is very difficult for us to meet the expectations because in a given market scenario, the expectations and the prevailing offerings, competitive offerings are more attractive than us. Now, how to cope with that challenge, that can be your particular power that you don't have. So I think it needs to be corrected over here, that weaknesses must be your internal affairs, not the external. But overall, I congratulate you. It's very good, and I do hope that inshallah it will be very high successful. Thank you. Marketing and HR Must hire some financial. Okay. As far as I know, that I have already taught you the capital budgeting techniques. And capital budgeting techniques, particularly when we are talking about the net present value. So the value of any businesses depend upon what their future cash flow, present value of their future cash flow. You have mentioned here the investment, well, okay, whatsoever the investment, but where are the projection of your earnings? So, because I have just joined, I don't know whatsoever you have presented here. Sir, but okay, these are your expectations that you are going to get this amount in monthly revenue. Yes, sir. And what about the cost? How much cost will incur on producing that particular amounts in revenue? Sir, actually, the sale. Say, let me complete. Yes, say, for example, if the costs are more than that of the revenue, then how you will manage? Will you say that is the good business plan? If even though you are mentioning here the different amounts in revenue, but to what extent they may be, you are confident they may be realized? So I think you must consider the cost as well. Yes, sir. And you must consider the different techniques, capital budgeting techniques, particularly the widely used technique that is net present value. Yes, sir. So you must clearly mention the cash flows. I am talking about the cash flow, and you know very yes, well what does it mean by the cash flow. Yes, sir. I'm not talking about the revenue. Yes, sir. Okay? And cash flows are, by cash flow we mean operating cash flow. Okay? कॉस्ट लग रही है हमारे प्रोडक्ट्स को बनाने में, या जैसे कस्टमाइज गिफ्ट्स हैं या इवेंट्स हैं, तो उसकी पेमेंट हम कस्टमर से एडवांस में लेंगे, हाफ पेमेंट। और दूसरा कि जो कस्टमाइज चीज़ें हम बना रहे हैं वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग है, तो जब हम हाफ पेमेंट ले रहे हैं तो हमारी कॉस्ट खुद की इतनी नहीं लग रही है, और जब फर्दर पेमेंट कस्टमर करेगा तो हमारा जो रेवेन्यू है वो कवर हो जाएगा।
तो एक्चुअली मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि आई डोंट नो व्हाट इज एक्चुअल प्लान जी सर, एक्चुअली में एस्टिमेटेड तो है, लेकिन सर आपने कहा ना कि हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है, तो कॉस्ट हमारी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हम जो हैं कस्टमाइज इवेंट्स जो है इवेंट डेकोरेशन कर रहे हैं, तो इवेंट डेकोरेशन में जो कॉस्ट होगी दैट इज़ कम्प्लीटली पेड बाय द कस्टमर, कि वो कौन सी डेकोरेशन चाहता है, उसको क्या मटेरियल उसमें रिक्वायर्ड है, जो भी सेटअप वो करवाएगा, तो उसकी टोटली जो है जो कॉस्ट है वो कस्टमर ही पे करेगा, तो इसलिए इसमें हम लॉस में हैं। What sir is saying that maybe you should aid some technique, maybe net present value, maybe payback, yes, net sir. present value payback जो है NPV, payback period. What is the payback period? So maybe Yes, that will look more realistic. Okay, Yes, sir. so maybe it's good time. I think NPV is a good. We will implement it. Widely used Payback is net payback. So maybe discounted cash flow. discounted payback period. Okay, so maybe that will be the good thing, I think. Yes sir, thank you so much sir, we will work on it. Thank you very much. I appreciate, please. Thank you very much, Dr. Rainbek and Dr. Ismail Saab, that they have organized this types of the programs, and you are trying to increase the intellectual capital, and you are boosting the property, that you are shaping all these ideas of entrepreneurial as innovation is concerned. So you are doing very well, and you have presented very good. But I was not on that, but initially I was there. So I appreciate your efforts and your techniques and your trades, but whatever the deficiencies and weaknesses there is, and there will be, but we will cover, we will, you can say, come on, overcome that things, because this is our initial, and you are now a practical, and in the practical things, that is some types of the loopholes comes, so that's, it's not problem. So you are very, you have very well presented this project, and inshallah, hope that you will in future, you will, you can say, cover the market areas, and you will hold on markets and rule out on the markets. So I also congratulate all of you and your batch and your teachers and your department, that they are doing well for your future, and your future is bright also. So I wish you will be work hard, and whatever the weaknesses are there is, or whatever the opportunities are for you, so please completely utilize for your benefit, for your benefit, for your family benefit, for your organizations. Thank you very much. This might try always, that means that we organize such type of the events for the betterment of our students. So this, I think, the fifth one, that means the presentation, that means regarding the business plan. This is the fifth business plan. So again, the effort is there that we want to contribute the certain through this entrepreneurship in the society. So now that they are determined that after completing their graduation from this institute, they will start their own business. So thank you very much for your, it was my responsibility, and also thankful to you. That means you have done a wonderful job, and you have decorated the whole, everything is fine. So not only I'm happy, but all my faculty members along with the dean, all we are much happy from your continuous efforts. Thank you very much.